Morning students, I am teacher of Jyoti Public School. Today I will discuss 10th class science chapter 6 life processes back exercise question answer. Question number 7. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? कि autotrophic nutrition के लिए necessary conditions क्या हैं और इसके byproducts क्या हैं, मतलब इस दौरान हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. Autotrophic nutrition takes place through the process of photosynthesis. कि autotrophic nutrition जो है ये photosynthesis process के थ्रू होती है and carbon dioxide, water, chlorophyll, pigment, sunlight, optimum means right temperature are the necessary conditions required for autotrophic nutrition. मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं. एंड बाई प्रोडक्ट्स आर मीन्स इस दौरान जो हमें चीज़ें मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use anaerobic mode of nutrition. तो anaerobic nutrition के बीच का जो difference है that is first aerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, right? And anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Second point, it takes place in the cytoplasm and mitochondria. कि जो respiration है वो that occurs in or takes place in cytoplasm और mitochondria में occur होती है. And anaerobic respiration, that entire process takes place only in the cytoplasm. अकेला cytoplasm में occur करती है. Then third point, in case of aerobic respiration complete oxidation takes place. मतलब इसमें फूड टोटली जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, राइट जी. एंड इन anaerobic respiration incomplete oxidation of food takes place. And then fourth point, 38 ATP molecules are produced by the oxidation of 1 mole of glucose. कि अगर हम ग्लूकोज का 1 मोल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं उस दौरान हमें 38 ATP मतलब ये एनर्जी है 38 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. बट इन केस ऑफ 1 मोल एनारोबिक रेस्पिरेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी. In case of aerobic respiration, end products are carbon dioxide and water. And in case of aerobic respiration, end products are alcohol and or lactic acid and carbon dioxide. Next, और साथ में पूछा है anaerobic respiration occurs in yeast, lactobacillus, right, etc. Now, how are alveoli designed to maximize the exchange of gases? ये alveoli जो हैं this present in the lungs कि ये जो alveoli है ये किस तरह से डिज़ाइन होती हैं, किस तरह से डिज़ाइन होने के कारण ये हम गैसेस को मैक्सिमाइज करती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो वो एक्सचेंज हो पाती हैं. There are 700 million alveoli प्रेजेंट इन द लंग्स में 700 alveoli प्रेजेंट होती है. वो जो बैलून की शेप में होती है सैक्स बोलते हैं जिसको हम एयर सैक्स बोलते हैं, राइट. एंड द वॉल्स ऑफ द alveoli आर एक्सट्रीमली थिन एंड मॉइस्ट एंड देयर बाय अलाउइंग गैसेज टू डिफ्यूज थ्रू देम इजली. कहता है ये जो एयर सैक्स है या alveoli की जो वॉल्स हैं ये बहुत थिन होती हैं और मॉइस्ट होती हैं, राइट. जिसके कारण क्या है कि जो गैसेस की डिफ्यूज़न है वो थ्रू डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस होती है. डिफ्यूज़न का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कि alveoli में क्या होता है ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और फिर ऑक्सीजन बॉडीज़ के अंदर जाती है
और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू होकर हमारे माउथ या नोज से बाहर हो जाती है, राइट है जी। सो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। Alveoli are in close association with blood capillaries and provide a large surface area for gases exchange। कहता है कि जो एल्वोली जो है वो उस ब्लड कैपिलरीज के बिल्कुल नज़दीक होती है। मतलब अगर आप ऐसा कहें कि हमारी जो एल्वोली है उसके ऊपर कितनी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, राइट है जी। और साथ में वो लार्ज सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करती हैं। तकरीबन अबाउट 180 मीटर स्क्वायर एक एल्वोली। सो नेक्स्ट, what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body। हमारी बॉडी में होमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए उसके क्या नुकसान, क्या रिजल्ट हो सकता है। होमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कई बार ये वर्ड्स कंफ्यूज करता है, ये वर्ड कंफ्यूज करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के ईच सेल को जो ऑक्सीजन मिलती है, राइट है जी, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। हर एक सेल को ऑक्सीजन मिले। कहता है कि ये जो होमोग्लोबिन है ये हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारी बॉडी के ईच सेल, आप ऐसा कह सकते हैं ईच ऑर्गन और ईच सेल को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसीलिए अगर ब्लड में होमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इट मीन्स ऑक्सीजन की बॉडी को थ्रू आउट जो सप्लाई है उसकी कमी होना। एंड दिस कैन लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन द बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपरली तो उसमें क्या होगा कि बॉडी के जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और ड्यू टू लैक ऑफ होमोग्लोबिन कैन आल्सो कॉज अनीमिया, राइट। अनीमिया मीन्स जिसमें ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स की जो शेप है वो रेड होती है। अनीमिया के केस में इनकी जो शेप है वो सिक्कल जैसे हो जाती है। अगर सिक्कल मतलब ये ना सड़कों को ब्रेक डाउन करने के लिए वो आयरन की बनी होती है, उसको बोलते हैं सिक्कल। अगर ये भी ना समझ लगे तो आप ऐसा कह सकते हैं वो हरी मिर्च हमारी जो है, लाइक दैट। ऐसे ब्लड के सेल्स की जो शेप ऐसी हो जाती है इन सिक्कल सेल में, और जिससे जो पर्सन है वो काफ़ी वीक हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।